नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 15 यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 के लिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूजीसी नेट की मॉक टेस्ट के लिए, फ्री लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जॉब अपडेट्स के लिए। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स, फ्री लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस and mock tests of environmental sciences for UGC NET and SET. So question number 1, what is the role of environment management plan as part of environmental statement? Environment management plan का क्या रोल होता है environmental statement में? Option A, it describes the environmental impact of the proposal. It describes the baseline environmental data. It describes the project proposal in detail, or it describes the actions and auditing procedures needed. तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो प्लान होता है वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज इस प्रोजेक्ट से होगा उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वो ही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान मोटा मोटी होता है। तो ऑप्शन डी जो है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शंस एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स नीडेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान व्हिच tells you how to remedy the negative impacts of an project on the environment. And that is why option D, it describes the actions and auditing procedures needed. That's the correct answer. Option A, it describes the environmental impact of the project. No, it describes the baseline environmental data. Baseline environmental data means all the current environmental conditions of that area. So that is also not the right answer. It describes the project proposal in detail. That is also not the right answer. Environment management plan describes the action and procedures needed for environmental management of any project. Okay. Question 2. Which of the following criteria should not influence the process of establishing significance of impact of a development project on environment? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को डिस्क्राइब करते वक्त या आइडेंटिफाई करते वक्त? सेंसिटिविटी ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मस्ट बी considered while describing the significance of impact of establishing the significance of impact of a development project. Probability of occurrence of the impact, मतलब कि impact की probability क्या होगी? So that is also very important. The probability of occurrence of any environmental impact must be considered in the process of establishing significance of impacts of a project. Views and values of the developer, this should not be considered. Views and suggestions of the public, पब्लिक के व्यूज और सजेशन जरूर कंसिडर करना चाहिए, इसलिए तो पब्लिक हियरिंग की जाती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में। तो इसलिए जो व्यूज ऑफ एंड वैल्यूज ऑफ द डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट को खड़ा कर रहा है, उनका क्या व्यू है इन्वायरमेंट के बारे में या उनका क्या वैल्यूज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उनका अक्सर पैसा ही मोटिव होता है। तो अगर उसके व्यूज को कंसिडर करेंगे तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं बनेगा या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान सही नहीं बनेगा। तो दिस ऑप्शन सी, व्यूज एंड वैल्यूज ऑफ द डेवलपर should not influence the process of establishing significance of impact of a development project. ठीक है. Question 3. Which of the following are benefits of environmental audit? Environmental audit के क्या benefits हैं, क्या फायदे हैं? A. Material audit leads to improvement in the production efficiency and cost. B. Pollution monitoring leads to environmental quality improvement. ये दोनों statements सही हैं. Approach towards zero discharge and zero emission leads to clean development. जीरो डिस्चार्ज और जीरो इमिशन का मतलब होता है कि वेस्ट वाटर का जीरो डिस्चार्ज, कोई और वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ना हो फैक्ट्री से, और जीरो इमिशन मतलब कोई एयर पोल्यूटेंट इमिट ना हो फैक्ट्री से, तो वो भी लक्ष्य होना चाहिए। डी. इंसेंटिव फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट टैक्स रिबेट्स लीड्स टू क्लीन एनवायरमेंट। तो इंसेंटिव का मतलब होता है कुछ उपहार, कुछ टैक्स रिबेट, अगर कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अगर आप पोल्यूशन अबेटमेंट करेंगे, अगर आप पोल्यूशन कम करेंगे तो आपको इंपोर्ट टैक्स की जो ड्यूटी लगती है, टैक्स ड्यूटी, उसमें कुछ रियायत दी जाएगी। ठीक है, तो अपने आप में ये चारों में से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इन्वायरमेंटल ऑडिट का क्या बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर होगा डी, इन्वायरमेंटल ऑडिट कराने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, डी। ठीक है, अ कंपनी ऑपरेटिंग अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज डेवलप्ड एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। यहाँ पे ध्यान देखिए, ईएमएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, टू एनहांस द परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी, एक कंपनी है जो कि एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है, जैसे कोई बजाज एक कंपनी है तो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका है,
और उन्होंने एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है ताकि उनका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सके और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सके। तो उस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या मेन एस्पेक्ट होना चाहिए, क्या की एस्पेक्ट होना चाहिए? ए, ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेफ्टी प्रोसीजर्स। बी, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सी, डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। या डी, द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एन एनवायरमेंटल पॉलिसी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? तो ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेफ्टी प्रोसीजर तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये इन्वायरमेंटल एंगल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट when it comes to environmental aspect. Then aspects of cost involved in developing an environmental policy. Clearly, this is also not important because developing an environmental policy is very important to them. So, irrespective of the cost, they have to develop the policy. So, A, B, and C are not. B and D are not true. Point C, development of an overall framework for environmental affairs of the company. This is very important. If you develop an overall framework for environmental affairs of the company, that framework will involve every aspect and every procedure of the environment. So this is very important. जो C option है, development of an overall framework for environmental affairs, कि जो भी environmental affairs होते हैं कंपनी के, उनके लिए एक overall policy, एक framework डिजाइन किया जाए, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये C जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। This is C is the correct answer. Question 5. What does the best practice in scoping require? Scoping का best practice क्या होता है? तो क्वेश्चन 5 में साइट विजिट इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करेंगे कि वो कहां तक जाएगा या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। साइट विजिट, यस। एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्लियरली। तो अगर आपने पहले वैसा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया है और तो उसमें क्या स्कोप था, वो भी देखना जरूरी होता है। यूजिंग फॉर्मल स्कोपिंग टेक्निक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मल स्कोपिंग टेक्निक्स जो निर्धारित है कानूनी, वो सब भी करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल। साइट विजिट करना चाहिए, जहां साइट पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यू मस्ट विजिट दैट साइट। एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यू मस्ट कंसिडर दैट एंड यू मस्ट ऑल्सो यूज फॉर्मल स्कोपिंग टेक्निक्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन 6, मैच द फॉलोइंग: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डिस्क्रिप्शन, मिटिगेशन मेजर्स। और इसको कहां कहां मैच करेंगे? मिटिगेशन मेजर में क्या होता है? डी को मैच करेंगे 1 के साथ, ठीक है। So D has to match with 1. Mitigation measures reduce or avoid the impacts. Baseline description, establish present and future stages of environment. Scoping, easy indication of crucial impacts. And screening, narrowing the application of EIA. So that is, A has to be matched with 4 and B has to be matched with 3. C has to be matched with 2 and mitigation measure D has to be matched with 1. So answer will be A. इस तरह के क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको इन सब का आंसर नहीं पता है पर किसी एक चीज में आप श्योर, जैसे कि स्क्रीनिंग, नैरोइंग द एप्लीकेशंस ऑफ EI, एप्लीकेशन ऑफ EIA, तो ये स्क्रीनिंग में आप श्योर है कि 4 ही होगा। तो आप देखिए कि A को 4 से कहां मैच किया है, ऑप्शन ए ने, तो यही करेक्ट आंसर होता है। ऑलवेज यूज दिस टेक्निक फॉर मैच द फॉलोइंग, ठीक है। द डिसीजन making process in EIA does not usually include what? Decision making process जो होता है EIA का, उसमें क्या नहीं इंक्लूडेड होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमेशा ही होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वाइबल और नॉट। वो तो देखते ही हैं कि पैसा इससे बनेगा कि नहीं, कॉस्ट बेनिफिट। प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन कि क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा एनवायरमेंट मैनेजमेंट का या दूसरे चीजों का, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई पब्लिक हियरिंग इज ऑलवेज कंडक्टेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिसाइडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, दिस is usually done after a project gets environmental clearance, after a project has been set up. तो EIA जब हो जाता है उसके बाद ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात आती है, तो ये EIA का पार्ट नहीं होता है। डी आंसर होगा क्वेश्चन 6 का डी। Question 7, in which EIA notification were development projects categorized as A and B? So EIA के अभी तक 2 ही नोटिफिकेशन आए हैं, 1994 और 2006। और 2006 के नोटिफिकेशन में प्रोजेक्ट्स को A और B की फॉर्म में कैटेगराइज किया था। A प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, और B प्रोजेक्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं रिलेटिवली और उनको स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। और B
During environmental clearance for any development project, the minimum distance from eco-sensitive zone required for site selection is, तो eco-sensitive zone से कम कितनी दूरी पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का साइट होना चाहिए, कम से कम कितनी दूरी पे, और उसका सही आंसर है क्वेश्चन 8 का बी, 10 किलोमीटर। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी भी प्रिजर्व्ड बायो रिजर्व से या किसी भी प्रिस्टाइन साइट से, प्रिस्टाइन साइट मतलब जो बहुत ही पुराना साइट है, जो प्राचीन साइट है और जहाँ पे नेचर एकदम ऑर्गेनिक फॉर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसको प्रिस्टाइन साइट कहते हैं। तो उस तरह की साइट से भी 10 किलोमीटर दूरी पर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी डेवलपमेंट का जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी उस प्रोजेक्ट के द्वारा होगा, वो उस इको सेंसिटिव जोन पे ना आए। तो ये होना चाहिए आंसर बी, 10 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन 9, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इसमें से किसमें से एसोसिएटेड है, और इसका आंसर होगा EIS, Environment Impact Statement. Environment Management Plan is always a part of the Environment Impact Statement. और एक्चुअली इसका दो आंसर हो सकता है, Environment Impact Statement भी और LCA, Life Cycle Assessment of a Project, इनमें से भी दोनों, both are correct options. So A and D both are correct. Question 10. What is ISO 14000 associated with? ISO 14000 किससे associated है? Adoption of environmental safety guidelines, energy audit in industries, adoption of clean development, adoption of environment management system in industry or organization. And the correct answer is D, adoption of environment management system in industry or organization. किसी भी industry या organization में अगर environment management system properly adopted है, तो उसको ISO 14000 certification मिल जाता है. What do EIA of port and harbor projects involve? Okay. पोर्ट एंड हार्बर क्या होता है? समुद्र के किनारे जो पोर्ट, जो जहां बंदरगाह होती है, उसका प्रोजेक्ट जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, यस. इम्पैक्ट ऑफ ऑन एयर एनवायरमेंट, यस. इम्पैक्ट ऑन सॉइल एनवायरमेंट, मे बी. और सोशल एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ऑन सोशल एनवायरमेंट, ऑलवेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ए, नो. ओनली बी, नो. ओनली सी, नो. A, B and D. Impact on biological environment, impact on air environment, and impact on social environment. This is the correct option. Question 12. EIF mining projects involves which of the following? Mining project में जब EIA होता है तो क्या क्या होता है? जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, जियोलॉजिकल मतलब जमीन की जो सतह है या उसके नीचे का एनवायरमेंट, यस. बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, आसपास के जीव जंतु कैसे प्रभावित होंगे, यस. एरियल एनवायरमेंट की हवा पे मतलब एटमोस्फेयर पे क्या असर पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, A, B and C, all of them. तो जियोलॉजिकल एनवायरमेंट तो हम समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट भी कि जहां खुदाई होगी वहां पे आसपास नेचर डिस्टर्ब होगा. एरियल एनवायरमेंट भी, whenever you dig something like in a mining project, lot of pollutants are emitted in the air, suspended particulate matter, heavy metals, they all can be emitted into the air because of mining projects. Okay. Accreditation of environmental consultant organization in India is done by, तो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स जो होते हैं या इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में होती है, उनका एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नो. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नो, मिनिस्ट्री नहीं करती है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नो, वो भी नहीं करती. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करती है एक्रेडिटेशन, और एक्रेडिटेशन का नाम है NABET, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. NABET वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा है, और वही ऑडिट एनवायरमेंटल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन करती है. ठीक है. अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस एज वेल एज अप्रूवल अंडर वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995. तो एक ऐसा एक्ट है जिससे कि क्लियरेंस हमेशा लेना पड़ता है, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कि क्या इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई पेड़ टूटा है, गिरा है, काटा गया है, और अगर काटा गया है तो उसके बदले कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन हुआ है कि नहीं, या पेड़ काटने से पहले क्लियरेंस लिया गया है कि नहीं. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत ये क्लॉज आता है, और हर प्रोजेक्ट के बनने पर कोई ना कोई पेड़ को काटना ही पड़ता है, तो यहाँ भी क्लियरेंस लेना पड़ता है. व्हाट डू इको लेबल्स इंडिकेट? इको लेबल्स क्या इंडिकेट करते हैं? एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, यस. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, yes. Claims of environmental friendliness of a project, yes. So all of these, answer will be 4, all of these. Question 16. ISO 14040 is environment management, life cycle assessment and principal framework, environment management, environmental assessment of site and organization, guidelines for environmental audit, general public,
या एनवायरमेंट मैनेजमेंट वोकैबुलरी। आईएसओ 14040 में इनमें से कौन सा होता है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा आंसर। और आंसर है क्वेश्चन 16 का ए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल असेसमेंट एंड प्रिंसिपल फ्रेमवर्क। लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है कि प्रोजेक्ट के बनने से लेके प्रोजेक्ट के खत्म होने तक जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वो प्रोजेक्ट छोड़ता है उसको हम लाइफ साइकिल असेसमेंट कहते हैं। तो आईएसओ 14040 में वो बात उसमें लिखी गई है। व्हिच आर द फॉलोइंग is not associated with ISO 14000 series? Promotes eco-labeling of a project? It does. It is based on the recommendations of TC 2107 committee? Yes. Makes environmental audit mandatory? Yes. Promotes human rights and women empowerment? This is not true. ISO 14000 series has got nothing to do with human rights and women empowerment. तो ISO 14000 जो सीरीज है बाकी तीनों ABC स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका ह्यूमन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और आप ये याद कर लीजिएगा कि ISO 14000 सीरीज किस लिए जाना जाता है? तो इको लेबलिंग का होता है उससे, और वो TC 2207 कमिटी के रिकमेंडेशंस पे होता है, और एनवायरमेंटल ऑडिट को मैंडेटरी कर देता है। इसको आप याद कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को किसी और तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 18, एट विच स्टेज ऑफ EIA प्रोसेस आर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिक्स? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में टॉर भी कहते हैं, और वो स्कोपिंग के स्टेज में फिक्स होता है। ये मैंने अपने EIA के लेक्चर में पहले बताया भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो EIA के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक कीजिए। So scoping is the stage at which TOR or terms of reference are fixed. If you want to know more about the EIA, please click the link in the description box. Arrange these functions or stages associated with the EIA in a sequential manner. इनको कड़ी में लगाएं। तो पहला होता है डिफाइनिंग स्कोप, कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या स्कोप होगा। तो पहले होना चाहिए सी। फिर होता है इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहा है कि वो इम्पैक्ट हो सकता है उसको। दूसरा इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपको पता है कि इस इंडस्ट्री या इस प्रोजेक्ट की वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है। सो सी, ए, बी एंड फाइनली इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। और सारे कुछ के बाद इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी, ए, बी एंड डी। 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर आप ये टेस्ट खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो को म्यूट कर खुद से सॉल्व कीजिए। द रोल ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB इन EIA इज, SPCB का क्या रोल होता है EIA में? ए, पब्लिक हियरिंग एंड कंसल्टेशन। यस, क्योंकि पब्लिक हियरिंग SPCB ही कराती है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। इशू ऑफ NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी SPCB से लेना होता है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप EIA करवा दें तो। कलेक्टिंग एनवायरमेंटल डेटा, वो उसका SPCB का काम नहीं है। सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये भी SPCB का काम नहीं है। SPCB का काम है पब्लिक हियरिंग या कंसल्टेशन कराना और NOC देना। ए एंड बी, क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ए एंड बी। तो आज के लिए इतना ही, आशा है ये क्विज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलती हूँ आपसे अगले क्विज में। जय हिंद, जय भारत, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।